आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाट इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इन द नेक्स्ट 25 इयर्स, सदगुरु's इंडिपेंडेंस डे मैसेज 2021। वैसे सदगुरु जी की जितनी भी हम वीडियो देखते हैं बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत ही मैं कहूंगी कि वो लॉजिकल आंसर देते हैं, लेकिन आज वो क्या मैसेज दे रहे हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Namaskaram. This Independence Day is very special because it marks the beginning of the 70th year of independent India. India has come a long way since 1947. We have made great strides in terms of health, industry, scientific achievements and more importantly, lifting millions of people out of poverty. But many challenges still face the nation. To overcome these challenges, responsible and conscious action from the leadership and every citizen will be most essential. The immediate and obvious challenge is the pandemic, of course. I know a lot of people are thinking of virus as an enemy to fight with. No, please do not attempt to fight the virus. What is needed is social distancing, masking, vaccination and following all the other guidelines being issued by competent authorities. I beseech all of you, India has already lost nearly 500,000 people. And across the world, nearly 5 million people have died. Let us put an end to this. If all of us follow the protocols, live responsibly and consciously, this virus will definitely dissipate. Well, the virus may be grabbing all the headlines, but that is not the only challenge we face as a generation of people. There are many other things that need urgent action as well. Among these, the most important challenge that we face right now is soil degradation in the country. Unfortunately, this is a reality in large parts of the world, but particularly in India, it is a big challenge. We are heading to a place where our food and water scarcity is reaching a dangerous point. A couple of failed monsoons, we could face severe levels of strife and suffering happening in this country. Unless we turn this situation around, the planet that we hand over to the coming generations will be in such a state, they will look back and curse us. That's how we are leaving it. It's extremely important we leave rich soil, clean water and clean air for people to live, because good life comes not because of wealth, but because of clean water, clean air, nutritious food. These things are being severely threatened right now with soil degradation. This is the most important aspect that we need to address in our concerns of the pandemic. We should not miss this point that our soil needs care. Well, I've been speaking to a lot of experts in the field, and everywhere there is enough awareness about the problem and also the solutions. It is just that to implement, it needs people's cooperation. Most nations on the planet being democratic, it's very important large numbers of people need to understand this and support the governments in implementing long-term processes for soil regeneration and in turn prevent water scarcity and other fallouts. Today we are seeing everywhere climate change issues have become big, and they have become big only because disasters are hitting us. As conscious human beings, let us not wait for a disaster to come and strike us. If we are conscious, if you are civilized, we must wake up before disasters come. A disaster is not a pleasant thing, it's not a news in the newspaper or watch something on the television. People who are there either have lost their lives or lost everything that they had. In rectifying this, the most important aspects are we must attend to the government policies to ensure that significant amount of budgets and government machinery is invested in this. For this to happen,
The government policies are very important. Coming up with the right policies to protect India's soil is very important. A determined action on the part of the administrations, industry and the people is very, very needed right now. It is not a tomorrow's problem anymore, it is today's problem. We need to address this. These problems have been mounting for the last 50 years. In the last 50 years, the level of damage we have caused to the biodiversity in the country's soil is immense and unpardonable. To fix this, we need a committed and a determined approach and ready for a long haul to turn this around. It is possible to do this, and this is the best gift we can offer to our children and their children. One thing about our nation, which is a kaleidoscope of cultures, kaleidoscope of ethnicity, and in every way we are a mix, an impossible mix of people, which is our strength, which is our quality. It is very important that we understand, though for small things we will bicker, when really big issues come, we have always come together to act as one nation, and once again this is very needed. We are entering the 75th year of India's independence. I beseech every one of you that we must act as one nation to beat the pandemic and also to revive India's soil and make this soil rich, because the richness of our soil naturally determines the richness of the life that we are. Richness of the life that we are will definitely determine the wealth of the nation, because people and in turn the soil is the only wealth the nation has. बात करें तो सदगुरु जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया हुआ है हमने। हम अगर देखें तो वाकई हमारी जो ज़रखेज़ ज़मीन है वो आहिस्ता बंजर होती जा रही है, नदी नालों का पानी सूखता जा रहा है, उसकी जगह जो है गंदे नाले लेते जा रहे हैं। तो नो डाउट ये आज की जो ज़िंदगी है इसमें एक बहुत बड़ा इशू है ये चीज़। और मुझे लगता है कि ये अन्याय हम लोग करते जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, और इतने सारे डिजास्टर हम लोगों ने फेस किए हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को शायद समझ नहीं आ रही इस बात की। बट मुझे उनका मैसेज बड़ा खूबसूरत लगा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू की तरफ, जो कि जहां पर सिर्फ मैं ही नहीं कहूंगी कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर हम सबकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे अच्छा बनाते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट से ज्यादा बाकी जो है सिंगल पर्सन, यानी कि मैं अगर अकेला बंदा हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो मुझे फेंकनी ही डस्टबिन में चाहिए, वो मुझे डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, वो मुझे इधर उधर फेंक के नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं किसी अगर जंगल वाली जगह पर जा रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं वहां पे अगर अपने साथ चीजें लेकर जा रहा हूँ, मैंने लेज खाया रैपर उधर फेंक दिया, कोई और चीज खाई रैपर उधर फेंक दिया। अगर आप लेकर जा सकते हैं तो आप वापस भी ला सकते हैं। बट पता है क्या मौसम, ये सिर्फ जंगलों की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर शहरों में भी बहुत सारे लोगों को देखा है, और इसमें मैं ये बात नहीं बोलूंगी इंक्लूडिंग माय फैमिली। हालांकि मैं बहुत दफा इनको मना करती हूँ चीज से, क्योंकि मैंने एक टाइम पर आकर खुद को ये आदत डाल ली थी कि अगर जैसे मैं कुछ खाते भी हूँ बाहर तो मैं फेंकती नहीं हूँ बाहर, मैं अपने बैग में डालूंगी, मैं घर में आकर फेंक दूंगी, इस तरह से कर लूंगी। ये बहुत कम होगा शायद कभी कि मैंने फेंका हो कभी, मतलब अभी मुझे याद नहीं आता कि जब से मैंने वो स्टार्ट किया था उसके बाद से। बट ये कि हाँ, मैं अपने घर वालों को भी ये बात बोलती हूँ कि जो चीजें हम, अगर हम लोग एक बंदा कोशिश कर सकते तो मे भी ऐसा ऐसा और लोग कोशिश करना शुरू कर दें। शहरों को भी हम खुद ही गंदा कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने दरख्तों को खुद काट दिया है, हम लोगों ने अपनी कहेंगे कि पोल्यूशन का हम लोग खुद एक जरिया बन गए हुए हैं कि हम लोगों ने मतलब डिफरेंट चीजें, हम कहेंगे कि हम लोग और ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, बट हमारा रहना वो कितना मुश्किल होता जा रहा है, इस चीज की हमें समझ नहीं
नहीं है। मैं वाकई अगर बात करूँ तो पहले मैं इसी तरह करता था, खाता था, रैपर फेंक देता था, लेकिन जो है पिछले कुछ अरसे से ये चीज इनसे कह लें मुझे ट्रांसफर हुई है। इन्होंने मुझे जो है गाइड किया है कि मैं अगर कहीं पर जा रहा होता हूँ तो हाथ में मैं चीज पकड़ लेता हूँ, कोशिश होती है कि रास्ते में कोई डस्टबिन आए जो गवर्नमेंट ने रखी होती है तो मैं उसमें फेंक दूं। अमूमन होता मेरे साथ ऐसे ही कि मैं उसी में फेंकता हूँ। मौसम डस्टबिन से मुझे याद आया कि अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि वो जो डस्टबिन है जो ग्रीन बेल्ट्स के नाम से है यहाँ पर, उनको साफ सुथरा रखना अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ पर लोगों की कुछ जिम्मेदारी है वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इस तरह करती है कि वो साफ नहीं करती, इर्द गिर्द कचरा जमा हो जाता है, फिर वो जब बहुत जमा हो जाता है फिर जब कंप्लेन लोग करते हैं फिर आके वो उठा के ले जाते हैं। खैर अभी अगर हम बात करें तो पानी जो है वो वाकई एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है हमारे, खाली मैं इंडिया की बात नहीं करूंगा, पूरे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगा कि पानी जो है वो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो पहले अगर आज से हम 3-4 साल पहले चला जाए तो पानी की इतनी शॉर्टेज हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अगर अब हम बात करें तो हमें पानी एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे अगर मैं अब यहाँ के लोगों को देखूं ना तो मुझे ये गलत नहीं लगता कि टाइम सेट कर दिया गया। उसकी रीजन ये कि जब पानी 24/7 यहाँ पर आता था तो लोग बहुत ज्यादा वेस्ट करते थे पानी को, गलियों में पानी लगा दिया, गर्मी बहुत है फलाना और ये, इसलिए मैं कहा अच्छा भी है नहीं भी है, कह रही हूँ। और इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखना, टाइम सेट हुआ, अब इनको पता है कि पानी यहाँ से इस टाइम तक भरना है और हमें उसमें इस्तेमाल करना है। बट पानी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, और इस चीज को मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे अब रियलाइज हुआ है, बट ये कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या वो कहते हैं शॉर्ट, यार ट्रांसफार्मर जो होता है उस वो जो है खराब हो गया, उसके खराब होने की वजह से जो है पूरा दिन लाइट नहीं आई, लोग बेचारे, पानी आना था वो मोटर भी नहीं चली डेफिनेटली, तो नहीं वो उधर उस फेस की लाइट आ रही थी। अच्छा? लेकिन क्या है कि जो है हमारी क्योंकि लाइट नहीं थी तो हमारी मोटर नहीं थी चल रही थी, और हमारी टैंकी काफी ऊंची है तो उस वजह से जो है पानी भी नहीं आ रहा था जो है बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसे और ऊंची भी, और हमारी टैंकी बहुत बड़ी भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट ये कि उस दिन मुझे ये चीज बड़ी शिद्दत से रियलाइज हुई थी कि आप कहीं ना कहीं पर ना लाइट के बगैर फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं, बहुत मुश्किल है। और फिर मैं सोचती हूँ देखो कि अगर हम लोग और पिछले टाइम में चले जाए ना तो लाइट जो है उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये कि देखो पानी तो हुआ करता था। यार मैं अगर बात करूँ ना तो आज के वक्त में, इनके पुराना वक्त तो खैर बहुत अच्छा था, हर चीज जो है वो क्योंकि आबादी कम थी, रिसोर्सेज ज्यादा थे, लेकिन अब आबादी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। अब अभी अगर हम बात करें सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करें, वैसे तो सीमेंट जो है वो एक हमें बहुत अच्छी चीज लगती है, सहूलत लगती है सीमेंट से बने हुए घर, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करती है। इवन के कई इलाके जो हैं वो सीमेंट फैक्ट्रीज की वजह से, जहां तक मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि वो बंजर भी हो जाते हैं इलाके। तो आप ये देखेंगे पुराने वक्त जो है वो कितने अच्छे थे, आपके भट्टे होते थे जहाँ पे आपकी ईंटें बनती थी, मट्टी से बनती थी, और उसके बाद उन्हें डेकोरेशन करने के लिए मट्टी से ही लेप किया जाता था। वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री की बात नहीं करूंगी, बहुत सारी और फैक्ट्रीज हैं। आई थिंक वो जो चमड़ा होता है उनकी भी जो फैक्ट्री होती है उसमें से भी जो पानी निकलता है वो भी काफी, मतलब जितने भी केमिकल्स निकलते हैं वो बेसिकली जमीन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और इन चीजों को हमें अब समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा होती जा रही है, ऑब्वियसली आपको चीजों की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपकी नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लोगों को ये चीज रियलाइज करवाना, नेचर का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। मुझे लगता है कि इस चीज की बहुत कमी है हमारे मुआशरे में, क्योंकि लोगों को इतनी सेंस ही नहीं है कि हम लोगों को नेचर के साथ किस तरह से प्यार करना है, हमें कितना ख्याल रखना है, दरख्त लगाने हैं, दरख्तों का ख्याल रखना है, ग्रीनरी होनी चाहिए, अच्छी फिजा होनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, उठ के नॉर्दर्न साइड पर तो चले जाएंगे एक ताजा हवा लेने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए, बट हम ये नहीं करेंगे कि हम अपने शहर को अच्छा बनाएं। और फिर उसके साथ साथ ये देखो मौसम कि ये चीजें जो है वो हमारी जिंदगी पर इतना असर कर रही हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ, कभी हम लोग को लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है, कभी हम लोगों को अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, कभी क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, कभी हम लोगों को, अभी ये देखो पेंडेमिक से 2 सालों से जूझ रहे हैं हम लोग और अभी तक हम लोग निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर कि गवर्नमेंट जो है
है वो चेक एंड बैलेंस, खासतौर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी फैक्ट्रीज को हम देखते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स देखते हैं, वो एक उन्होंने नाला बनाया हुआ है जिसमें उनका वेस्ट जाकर गिरता है और फिर वो उनका वेस्ट जो है वो जाकर दरियाओं में गिरता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ये यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए पानी के साफ करके उसे दरियाओं में जो है फिर फेंक दें, वो फिर जरा काबिल इस्तेमाल रह जाते हैं, रीयूजेबल हो जाते हैं। लेकिन बगैर किसी ट्रीटमेंट के अगर हम देखें जब वो गिरते हैं, एक तो दरिया का पानी भी खराब होता है, पूरा कचरा जो उसमें सा जाता है वो भी दरियाओं में जाता है। उससे क्या होता है कि जितनी फर्टाइल लैंड को जो जाती है मट्टी जाती है वो फिर सारी जो है वो खराब हो जाती है। फिर उसके बाद जब सैलाब आते हैं तो फिर सैलाब में हम क्या देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कचरा जो है वो साथ बह रहा होता है। फिर हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम वक्त रहते काम नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एफर्ट सबसे ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पर होनी चाहिए, फिर चीजें जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये देखा हुआ है ना कि प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होती हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं पर अपनी जगह सही होते हैं। जैसे यहाँ पर तो खाने पीने की प्रॉब्लम है, भाई लाइट की इतनी प्रॉब्लम है, यानी कि 21st सेंचुरी में भी हम लोगों के बड़े बड़े शहरों में हमें बिजली की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। चले शॉर्टेज तो एक अलग चीज है, बिजली की शॉर्टेज के साथ जब इतने बड़े बड़े बिल आते हैं ना, एवरी मंथ हम लोगों को नेट एक्सेस के साथ बिल भरने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज भी समझनी चाहिए कि हम लोगों को अगर एक मतलब सही तरह से अवेयर करवाया जाए ना, तो मुझे लगता है कि चीजें बड़ी सही हो जाएंगी। बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि नेचर से प्यार करना सिखाना चाहिए, पौधों से, जानवरों से, परिंदों से, हर चीज से प्यार करना सिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की दुनिया थोड़ी और ही हो जाएगी, बहुत बदल जाएगी। वेल गाइस, बहुत एक अच्छा मैसेज था और सदगुरु की बातें हमेशा सुनने का मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो बातें बताते हैं और आपको वाकई में समझ भी आती है। आपको मन करता है कि आप और सुने इनसे बातें डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप जरूर बताइएगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं इन चीजों को लेकर, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप क्या अपनी तरफ से एक नई चीज ऐड करना चाहेंगे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। सही बात है। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, चैनल करें, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।